shifting our focus to Bengal, where explosive RG Kar hospital tapes are now out, and the RG Kar hospital has been under scanner from the very first day in the horrific rape and murder case of the trainee doctor in Kolkata. Now there is clear proof how the hospital authorities tried to pass off the death as suicide in their first calls to the family. Listen into these phone conversations recording we have accessed between the RG Kar hospital authorities and victims' parents. হ্যাঁ বলুন। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বাবা বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। এটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আইসি আরজি কর বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আসুন। আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন আরজি কর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যালো। হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। My colleague Mukesh is now joining me for more details and also to elaborate what exactly happened in these phone calls. Mukesh, a clinching proof has been accessed by NDTV. The phone calls are clearly indicating that there was an attempt to mislead the parents as it was being passed off. The horrific rape was being passed off as a suicide. देखिए बिल्कुल ये जो ऑडियो है, ये जो बातचीत है, ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की अथॉरिटी है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उनके ये फ़ोन कॉल्स हैं और उन्होंने जो डिसीज़ लड़की थी उसके घर वालों को कॉल किया था। और ये कॉल 9 अगस्त की सुबह करीब 10:54 पर किए गए। 2-3 बार उनकी बात हुई और जो आवाज़ है, इस जो बातचीत है उसमें साफ तौर पर ये सुनाई दे रहा है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कह रही हैं विक्टिम के पिता से कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, ऐसा लगता है, और उसकी मौत हो गई है। वो जितनी जल्दी हो सकें अस्पताल में पहुँचें। पुलिस मेरे सामने है, पुलिस मौके पर है। इसके बाद वो कहती हैं कि जो लड़की है उसकी तबीयत ख़राब है। तो ये सारी जो बातचीत है, ये विक्टिम की फैमिली और जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं उनके बीच में हुई बातचीत है, जिससे घर वालों के जो एलिगेशन हैं, जो उन्होंने कहा था कि जो अस्पताल की ओर से उनको पहले बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, वो बिल्कुल सही साबित होते हैं। क्योंकि ये ऑडियो में साफ हो गया है कि अस्पताल की ओर से जो घर वाले हैं उनको पहले ये बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और इसको लेकर एक तरह से मामला आगे बढ़ा। शायद यही वजह है कि इस मामले की जांच में देरी हुई, जांच देर से शुरू हुई। तो ये ऑडियो क्लिप एनडीटीवी के पास हैं, एनडीटीवी के हाथ लगे हैं, जिसमें साफ तौर पर ये प्रूव होता है कि अस्पताल के लोगों ने डिसीज़ की फैमिली को ये बताया शुरुआत में कि उसने सुसाइड किया है और बहुत जल्दी ही वो अस्पताल में पहुँचें। जो डिसीज़्ड है उसके शरीर पर चोट के बहुत सारे निशान थे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी एक डॉक्टर हैं और वहाँ पर और भी डॉक्टर थे। जब किसी के चोट लगती है तो चोट के निशान जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो निशान देखने के बाद एक डॉक्टर विक्टिम की फैमिली से ये कैसे कह सकता है कि विक्टिम ने सुसाइड किया है। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है और शायद यही वजह है कि जो
सीबीआई है वो लगातार इस केस की जांच कर रही है और आरजे कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल जो संदीप घोष हैं उनको 13वें दिन भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और जो स्टाफ है आरजे कर मेडिकल कॉलेज का जिसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं जिनकी ये बातचीत है और बाकी के लोग हैं उनसे भी यहाँ सीबीआई के दफ्तर में लगातार पूछताछ चल रही है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की, विक्टिम के परिवार को देर से जानकारी क्यों दी और जो विक्टिम है उसका शव घर वालों को देर से क्यों दिखाया। ये तमाम जो सवाल हैं इनको लेकर सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और संदीप घोष अभी भी कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के अंदर हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, 4 डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है जिन्होंने विक्टिम के साथ में उसकी हत्या के पहले खाना खाया था। तो एनडीटीवी के पास जिस तरह से ये ऑडियो क्लिप हैं और ये प्रूव करते हैं कि अस्पताल की ओर से जो डिसीज का परिवार है उससे पहले कहा गया कि उसने सुसाइड कर लिया है और यहीं से बात काफ़ी आगे बढ़ गई, जिसके बाद छात्र आंदोलन शुरू हुआ। छात्र गुस्से में आए कि आखिर क्यों मामले को दबाने की कोशिश हुई, आखिर क्यों कहा गया कि उसने सुसाइड किया है, जबकि साफ तौर पर यह मामला हत्या का शुरुआत से ही लग रहा था। जी मुकेश, ये भी बहुत लोगों का मानना है कि वहाँ पर जब हत्या का ये सिलसिला सामने आया उससे पहले वहाँ पर खूब सारे जो लोग देखे गए, वहाँ पर उस चीज़ को भी उठाया जा रहा है कि ये फ़ोन कॉल्स करने से पहले भी काफ़ी बातचीत हुई थी कि क्या विक्टिम के पेरेंट्स को बताना है। इसमें साफ तौर से रोल जो आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के फॉर्मर प्रिंसिपल रहे संदीप घोष, जिनकी अभी पूछताछ चल रही है, उनका भी ये रोल सामने आ रहा है कि उनके ग्रीन सिग्नल के बिना ये फ़ोन कॉल्स और ये बातें जो विक्टिम के पेरेंट्स को बताई गई वो नहीं बताई जा सकती थी। क्या ऐसा मानना है कि प्रिंसिपल आरजी कर हॉस्पिटल के संदीप घोष जो उस वक्त रहे थे उनका साफ तौर से यहाँ पर एक लिंक इस्टेब्लिश हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जो डिसीज थी उसकी डेथ, उसकी हत्या जो है सुबह 4 बजे 8 और 9 अगस्त की रात में हो गई थी। उसके करीब 5 घंटे बाद यानी कि 10:56 और 55 मिनट पर जो लड़की के घर वाले हैं उनको बताया गया। आखिर इतनी देर से जानकारी क्यों दी गई? और एक और बात निकलकर सामने आ रही कि जो आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, उन्होंने इस वारदात के बाद एक मीटिंग ली, घर वालों को बताने के पहले एक मीटिंग ली और मीटिंग में क्या कुछ हुआ उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है, सबूत मिटाने का जो एलिगेशन है, जो क्राइम सीन है उसको प्रिजर्व नहीं किया गया, उसको सिक्योर नहीं किया गया, वो जो एलिगेशन है, तो उसके तहत सीबीआई जो है वो आरजी कर कॉलेज के कुछ स्टाफ के खिलाफ या जो आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। सबूत मिटाने को लेकर कार्रवाई हो सकती है क्योंकि लगातार उनसे पूछताछ चल रही है और उन पर यही एलिगेशन है कि उन्होंने शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश की, घर वालों को देर से इन्फॉर्म किया, जो क्राइम सीन था उसको प्रिजर्व नहीं किया और साथ में जो लड़की का शव था वो घर वालों को देर से दिखाया और कहा गया कि इसने आत्महत्या की है। तो ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है और इन आरोपों में, इन एलिगेशन में सीबीआई हो सकता है कि पूर्व प्रिंसिपल और आरजे कर कॉलेज के स्टाफ को गिरफ्तार भी करे आगे जाकर। Right, Mukesh, thank you so much for giving us those details. Many questions are being put up after these phone calls have emerged. First, the action taken by the hospital. Second, the intent behind those actions. But we will be keeping a close track on this.